Hello guys, welcome back to my channel. Today I am explaining you how to find the conditional distribution of x given y from a bivariate normal distribution. Suppose the conditional distribution of x given y is denoted by f of x given y. Therefore, f of x given y equals to f of x comma y upon f of y. Here, f of x comma y represents the PDF of bivariate normal distribution and f of y represents the marginal PDF of y. The PDF of f of x comma y is equals to 1 upon 2 pi sigma 1 sigma 2 under root 1 minus rho square into e raised to minus half 1 minus rho square into x minus mu 1 upon sigma 1 the whole square minus 2 rho x minus mu 1 upon sigma 1 into y minus mu 2 upon sigma 2 plus y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square. Here x and y both are lies between minus infinity to infinity. Mu 1 and mu 2 also lies between minus infinity to infinity. Sigma 1 square and sigma 2 square are greater than 0 and rho is lies between minus 1 to 1. Here x and y are two normally correlated variables such that expectation of x is mu 1 and expectation of y is mu 2. Variance of x is sigma 1 square and variance of y is sigma 2 square. And rho is a correlation coefficient between x and y. The PDF of f of y is equals to 1 upon under root 2 pi sigma 2 into e raised to minus half y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square. Here y is lies between minus infinity to infinity and sigma 2 square is greater than 0 and mu 2 is also lies between minus infinity to infinity. Therefore, f of x given y is equals to 1 upon 2 pi sigma 1 sigma 2 under root 1 minus rho square into e raised to minus half 1 minus rho square into x minus mu 1 upon sigma 1 the whole square minus 2 rho x minus mu 1 upon sigma 1 into y minus mu 2 upon sigma 2 plus y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square whole divided by 1 upon 2 pi sigma 2 into e raised to minus half y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square. Now this sigma 2 and this sigma 2 get cancelled with each other. Also we can write this 2 pi as under root 2 pi into under root 2 pi. So 1 2 pi and 1 under root 2 pi get cancelled with each other and only the under root 2 pi is remaining here. So we write it as 1 upon under root 2 pi. Here sigma 1 is remaining. So sigma 1 into under root 1 minus rho square and the whole bracket is remaining. So we write it as e raised to minus half 1 minus rho square into x minus mu 1 upon sigma 1 the whole square minus 2 rho x minus mu 1 upon sigma 1 into y minus mu 2 upon sigma 2 प्लस y माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 द होल स्क्वायर. और जो ये ई रेस टू के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. तो दिस इज इन नेगेटिव टर्म. सो वेन एवर वी टेक इन न्यूमरेटर द साइन विल गेट चेंज. देयरफॉर प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 द होल स्क्वायर. नाउ multiply and divide by 1 minus rho square in the only last term. मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस रो स्क्वायर से सिर्फ लास्ट टर्म में. यहाँ पे 1 माइनस रो स्क्वायर प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे एब्सेंट है तो हमें इंट्रोड्यूस करना है 1 माइनस रो स्क्वायर क्योंकि हमें दोनों टर्म्स में से 1 माइनस रो स्क्वायर को कॉमन निकालना है. तो यहाँ पे 1 माइनस रो स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में है बट यहाँ पे एब्सेंट है तो हमें 1 माइनस रो स्क्वायर चाहिए. इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया है. नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस रो स्क्वायर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हम 1 माइनस रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई
सिग्मा वन अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वेयर इंटू ई रेज टू माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन द होल स्क्वेयर माइनस 2 रो एक्स माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन इंटू वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू प्लस y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 माइनस रो स्क्वायर और जो 2 है वैसे का वैसा इंटू वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू द होल स्क्वायर. Now we can common. Okay, now here 1 upon 2 1 minus row square and 1 upon 2 1 minus row square get common. Therefore we can write it as 1 upon under root 2 pi sigma 1 under root 1 minus row square into e raised to माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वेयर इंटू यहाँ से तो ऑलरेडी कॉमन है तो x माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन द होल स्क्वेयर माइनस 2 रो x माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन इंटू वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू प्लस वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू द होल स्क्वेयर और यहाँ से कॉमन निकाला है तो ये टर्म निकल जाएगा. लेकिन हमने -1 अपॉन 2 1 माइनस रो स्क्वायर को कॉमन निकाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन विल चेंज -1 माइनस रो स्क्वायर वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू द होल स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. नाउ ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लास्ट टू टर्म्स. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट विथ दिस टर्म देन वी गेट y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square into -1 into this term. So minus y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square minus into minus plus rho square into y minus mu 2 upon sigma 2 the whole square. This bracket and this bracket get cancel with each other. Therefore we get rho square equals to 1 minus mu 2 upon sigma 2 the whole square. तो इस पूरे दो टर्म्स को हम रिप्लेस कर देंगे रो स्क्वायर इंटू वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू द होल स्क्वायर. तो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा 1 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू एक्स माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1 इंटू y माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू प्लस रो स्क्वायर इंटू वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू द होल स्क्वायर. ना ये जो पूरा ब्रैकेट है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है. सो हियर ए इज़ व्हाट, यहाँ पे ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन और बी क्या है रो इंटू वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू. तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी द होल स्क्वायर. तो ये पूरे ब्रैकेट को हम ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे. देयरफॉर हमारा एफ ऑफ एक्स की 1y कैसे दिखेगा अभी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा 1 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर ई रेस टू माइनस हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू एक्स माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1 माइनस रो इंटू वाई माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 द होल ब्रैकेट का स्क्वायर. दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी. ओके, अभी हमें सिग्मा 1 को कॉमन करना है. तो सिग्मा 1 को कॉमन करने के लिए हमें यहाँ पे सिग्मा 1 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सिग्मा 1 पहले करना पड़ेगा. तो
मैं मैनिपुलेटिव मतलब दिमाग में अपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख दे रही हूँ। नाउ हमने कॉमन करना है सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा, इट लुक्स लाइक 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा 1 1 माइनस रो स्क्वेयर ई रेस टू माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस रो स्क्वेयर। मुझे क्या करना है, ये सिग्मा 1 को कॉमन करना है, लेकिन ये सिग्मा 1 यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर देयर इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर x माइनस म्यू 1। यहाँ से भी मैंने सिग्मा 1 निकाला और मैंने अज्यूम किया है कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो यहाँ से भी सिग्मा 1 निकलेगा स्क्वायर होके, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस रो एक सिग्मा 1 जो न्यूमरेटर का है वो वैसे का वैसा सिग्मा 1 y माइनस म्यू 2 द होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2। okay, now we can write it as 1 upon under root 2 pi sigma 1 under root 1 minus rho square e raised to माइनस हाफ, सिर्फ टर्म्स को अरेंज करेंगे, 1 माइनस रो स्क्वेयर, एक्स को बाहर लिखेंगे, ओके, एक्स यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से माइनस निकलेगा तो ये क्या होगा, म्यू हमारा ब्रैकेट में चला जाएगा, ओके, माइनस म्यू 1, यहाँ से भी मैंने माइनस को कॉमन निकाला है तो क्या हो जाएगा, प्लस ये रो जैसा है वैसा सिग्मा 1 और यहाँ से मैंने सिग्मा 2 को भी बाहर निकाला इनटू y माइनस म्यू 2, ओके, और ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो दिस PDF इज लुक्स लाइक 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा ई रेस टू माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा the whole square, where sigma is sigma 1 into 1 minus rho square और mu is mu 1 plus rho into sigma 1 sigma 2 y minus mu 2। तो हम इसे लिख सकते हैं f of x given y follows normal with mean is what, mu 1 plus rho sigma 1 sigma 2 into y minus mu 2 or variance that is a sigma square. So sigma is this, so we want sigma square, so square this term sigma 1 square into 1 minus rho square. So this is the conditional distribution of x given y. Follow the same steps and you can find out the conditional distribution of y given x also. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.